Okay, Shweta is there. Ayush, Yes, ma'am. turn on your camera, beta. O- Be on the screen. It will be comfortable for you all to study. Okay? Because I will be watching you, so I will get the idea that you are understanding or not. So if I can see you, that will be much more better. Okay. Siddharth, you have window behind you. Lot of light is coming. Just cover it so that I can see your face. Okay. Ashish, put your camera on, beta. Hmm. Only four of you are there, so you can be on screen. It will be easy for me also. Okay. So I think last class I must have told you to read the chapter thoroughly, one part by part, everything. Okay. You have any doubts? Oh, okay. Say that. Now I can see you. Okay. Ashish, what happened? Where are you? Okay, fine. Now keep your textbooks with you. Okay. We will be discussing the exercise questions. And first of all, I will ask you some normal thing regarding the chapter. That is, do you have any doubts when you were reading the chapter? No doubts, Siddharth. Okay, Ayush, you have any doubts? Shweta, no doubts. Okay. Ayush and Ashish, nothing? No, ma'am. Okay. Ayush, No, ma'am. okay, fine. So, see this. If no doubts are there, so we will go with the exercise. We will discuss each and every question over here. And if you have anything in your mind that मैम क्वेश्चन समझ आ गया है पर लिखना कैसे है वो पता नहीं है, if that type of query is there, just let me know. I will dictate you the answer. You can write it. Okay. Fine. So shall I proceed? Okay. So first MCQs. MCQs. First one is fine. So first A, B, C, D. I am writing over here A, B, C, D, E, F, G, H. These many MCQs are there. Okay, fine. We will discuss them. I will write out down the answers over here. Okay, you can note down that part in your textbooks freely. Okay, with your pencils. So diffusion occurs when molecules move. Option should be डिफ्यूजन है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कभी भी कुछ जाता है नहीं. फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन लिखा है, तो मेम्ब्रेन अगर वर्ड यूज हुआ है तो डिफ्यूजन आएगा नो, क्योंकि मेम्ब्रेन है तो वो क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा. ठीक है. एंड
from higher in concentration to lower concentration? Option should be C. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? C. Ascent of sap in plants takes place through cortex, xylem, epidermis or phloem. You can give me answer like this. If answer is 1, show it like this. If it is 2, if it is 3, if it is 4. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एसेंट ऑफ सैप के लिए? थर्ड वन आशीष एंड आयुष, समझ आ रहा है? जाइलम के थ्रू एसेंट ऑफ सैप होता है। अच्छा 1 2 3 है ना, सॉरी हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये भी 3 है आंसर। इफ जाइलम वेसल्स ऑफ प्लांट आर प्लग्ड तो क्या होगा? द लीव्स विल टर्न येलो, नो फूड विल बी मेड, द प्लांट विल विल्ट, द प्लांट विल कंटिन्यू टू ग्रो। सबके मीनिंग्स पता है? विल्ट मतलब मुरझा जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विल्टिंग। तो अगर हम पानी वाली पाइपलाइन को काट देंगे तो प्लांट मुरझा जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 3। एम आई राइट? गुड। Force responsible for the ascent of sap is capillary, root pressure, transpirational or all of 3? ऑप्शन नंबर 4 है श्योर? सभी लोगों ने पढ़ा है एसेंट ऑफ सैप? रीड किया है आपने एसेंट ऑफ सैप? तीनों फोर्सेस काम लगेंगे? नहीं याद है तो वापस से पेज टर्न करो, एसेंट ऑफ सैप देखो। Where it is? ऑप्शन शुड बी पेज नंबर 6 पे एसेंट ऑफ सैप है। ऑप्शन शुड बी, श्वेता बता रही है 2। रूट प्रेशर, क्या आएगा? क्या आएगा आशीष आंसर? Ma'am, the answer should be ऑप्शन नंबर option number 2. 2। ओके आयुष आपके हिसाब से? So number 2. 2। सिद्धार्थ? स्कूल बंद है, स्कूल मतलब अभी सैटरडे है, ऑनलाइन क्लास छुट्टी दिया सिद्धार्थ आपको, बॉयज स्कूल अभी ऑनलाइन क्लास है।
आशीष पुट योर माइक ऑफ बेटा। हाँ सिद्धार्थ बोलो। आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा। लाउड लाउड। Ascent of sap is one of the आवाज नहीं आ रही। One of the process. Okay, one of the forces can be. According to you, the answer is all of the three. Okay, बाकी सबको क्या लगता है? Only root pressure will work for ascent of sap. I am waiting for you. सभी को क्या लगता है? ओनली रूट प्रेशर से हो जाएगा काम? नहीं होगा। उसके लिए आपको सारे फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि रूट से जाइलम तक पहुंचाना है और जाइलम से ऊपर पहुंचाना है, तो आपको ऑल ऑफ द थ्री चाहिए। आया समझ में? सो ऑप्शन शुड बी 4। ठीक है। Raisins swell when you put in rainwater, mustard oil, saline water or saturated sugar solutions. Raisins मतलब किशमिश। किशमिश को आप किस में डालोगे कि वो फूल जाएगा? मैम वाटर। वाटर में। तो वाटर का एक कौन सा वाला? रेन वाटर या सलाइन वाटर? सलाइन मतलब नमक वाला पानी। रेन वाटर। फ्रेश वाटर में डालोगे तभी वो स्वेल होगा। अंडरस्टूड? सो आंसर शुड बी ऑप्शन 1। Then root hairs are suited for absorbing water from the soil because they have large surface area, they have semi-permeable membrane, they contain a solution of higher concentration than the surrounding water, or all of three. Option should be रूट हेयर जो है वो क्यों पानी एब्जॉर्ब करते हैं? लार्ज सरफेस एरिया उनका है इसीलिए, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसलिए, या फिर उनके अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का होता है तो वो बाहर से पानी लेते हैं इसीलिए। ये ऑल ऑफ थ्री। ओके, बाकी सबका आंसर ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। हाँ, ऑल ऑफ थ्री। ऑप्शन नंबर 4। ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज, कौन सा डेफिनेशन सबसे सही है? आप बताओ कौन सा डेफिनेशन सबसे सही है? सिद्धार्थ आई गॉट। बाकी सब लोग? वेरी गुड श्वेता। आशीष आपके हिसाब से? मैम ऑप्शन 4। बेटा ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो रूट में से होगा ट्रांसपिरेशन। रूट जमीन के अंदर है, रूट से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा।
सिर्फ जो जमीन के ऊपर है, एरियल पार्ट्स, उसी में से ही ट्रांसपिरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3। Which one of the following favors the fastest transpiration rate? क्या क्या कंडीशन होगी तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा? मैम moist and rainy. वेरी गुड। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किस कंडीशन में होगा आशीष और आयुष? Moist and rainy. सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन पेड़ों में से पानी कब कब सबसे ज्यादा चला जाएगा? मैम summer. समर में। तो कौन सा कंडीशन सबसे सही है 1 2 3 4 में से? मैम what? 1 कूल ह्यूमिड विंड। आशीष आयुष आप नए हो क्लास के लिए? Yes मैम. ओके ठीक है, द ऑप्शन शुड बी 4। ओके, रीजन, जब बहुत गर्मी होगी, हॉट होगा, एकदम ड्राई वेदर होगा और बहुत हवा चल रही होगी, तो लीव्स जो हैं उसमें से बहुत सारा पानी चला जाएगा ना बेटा। ठीक है, आप समझ आया? ठीक है, आशीष और आयुष आप लोगों के, आयुष का तो क्लास नहीं हुआ है, आशीष आपके भी क्लासेस मिस हुए हैं? मैम कौन सी क्लासेस? शुरू के क्लासेस मिस हुए हैं? नहीं मैम, एक बार भी एब्सेंट हुआ. ओके फाइन, सो कॉन्सेंट्रेट, रीड योर चैप्टर, अच्छे से पढ़ो बेटा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एन एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप एज शोन इन फिगर। हम इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। After some time, the water level in test tube A fell down, but not in test tube B. Why was there a fall in water level in test tube A, not in test tube B? रीजन आप लोग लिख सकते हो खुद से, सभी लोग। आयुष आप क्या करोगे? मैम मेरे से हो जाएगा. हो जाएगा, गूगल से नहीं लिखना है, चैप्टर में से पढ़ के लिखना है। आप सी, जिन लोगों का डाउट है थोड़ा बहुत, जिसको चैप्टर समझ नहीं आया है या मिस हो गया है, उनके लिए अलग से क्लास हो जाएगा। बट अभी क्या है, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना बेटा, तो थोड़ा सा सेट हो जाए, सब कुछ ऑन ट्रैक हो जाएगा, फिर हम आपका ये जो मिस हो गया है वो भी करवा देंगे। अंडरस्टूड आयुष? ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है कि मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। और आंसर कोई किसी को देगा नहीं अपने, और कोई भी गूगल नहीं करेगा। आपको आंसर किस में से लिखना है, टेक्स्ट बुक में से ही ढूंढ के लिखना है। इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? इस वाले एक्सपेरिमेंट में। मिस. हाँ, मैम कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन? I was just asking you page number 11, short answer questions, फर्स्ट वाला, उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? ये वाला जो एक्सपेरिमेंट बना हुआ है ना, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, पेज नंबर 4 पे, 4 पे इसका आंसर है। ढूंढना, अच्छे से पढ़ना और फिर लिखना। अंडरस्टूड? पेज नंबर 4 पे आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर? ये है ना रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, पर पूरा पढ़ना अच्छे से, तो सब कुछ मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, फिर हाउ आर रूट्स यूजफुल टू प्लांट्स, गिव एनी 2 पॉइंट्स। रूट्स के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो रूट प्रेशर डेवलप करवा सकता है, सरफेस एरिया बढ़ा सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, what do xylem vessels carry? xylem क्या कैरी करता है? वाटर।
यस, जाइलम क्या करता है? कैरी। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर का 3 वाला, जाइलम कैरी करता है वाटर। और 2 वाले का आंसर आप लिख सकते हो, रूट्स आर यूजफुल बिकॉज दे डेवलप रूट प्रेशर एंड इंक्रीजेस सरफेस एरिया। सुनो, मेरी तरह शॉर्टकट्स में नहीं लिखोगे, आप पूरा स्टेटमेंट मेंशन करोगे, ठीक है? ये मैं सिर्फ आपको बता रहा। नेम द प्लांट टिश्यू हेल्प्स इन कैरिंग द फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कौन सा टिश्यू जो है वो फूड लेके जाता है? फ्लोएम, वेरी गुड, यस, फ्लोएम। Define the term semi-permeable membrane and osmosis. Question number 5. A. Semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane का definition लिख पाओगे? और मैं लिख के बता दूं, लिखवा दूं? Write down the membrane which allows the entry and exit through it in restricted manner. restricted मतलब सबको अलाउ नहीं करता है। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया डेफिनेशन? Got the definition? ओके, देन बी, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन मैंने क्लास में लिखवाया है आपको, तो आप वही डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, फ्रॉम नोट्स, जो क्लास में नोट्स लिखवाए हैं उसमें से देख लेना। ओके, आयुष आपके पास नोट्स नहीं होंगे, है ना? नहीं है। आप इनमें से किसी भी एक फ्रेंड को कांटेक्ट कर लेना। आपका स्कूल का कोई है इसमें? नो, नहीं है तो भी फ्रेंड बना लो इन लोगों को, ठीक है? श्वेता से या सिद्धार्थ से आप बोल देना, व्हाट्सएप पे अपने नोट्स मंगवा लेना, ठीक है बेटा? जो क्लास में लिखवाया है वो भेज देना, कोई भी एक जन। मांगना आपका काम है, जब आप मांगोगे तब वो लोग आपको दे देंगे, ठीक है? वो आपका काम है कांटेक्ट करना। Under what condition do a plant transpire more quickly and most slowly? So 6 number, एक मिनट, सी 6 नंबर पे क्या है? Under what condition do plant transpiration? जल्दी जल्दी कब करेगा? ऊपर आंसर एमसी, यस, और एमसीक्यू में ही कंडीशंस दिए हुए हैं, तो सबसे क्विक उसमें कब करेगा वो? हॉट, ड्राई एंड विंडी डे में, ठीक है? और बी, मोस्ट स्लोली, सबसे धीरे धीरे कब करेगा? कूल, यस, कूल, ह्यूमिड एंड स्टिल डे। बहुत ठंडक है, बहुत बारिश हो रही है, हवा नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन सबसे कम होगा और स्लो होगा। और जब बहुत गर्मी है, बहुत हवा चल रही है, सब कुछ ड्राई हो गया है, तो ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होगा। समझ आ गया आयुष?
Okay, shall I proceed for the next? पेज नंबर 12 पर ओके 7 number. Given alongside is an enlarged diagram of a part of the route. Draw arrows on the diagram to show the movement of water passing through the different parts of through different parts. Let me draw this first of all. ऐसा है कुछ, ठीक है। आपको एरोज बनाने हैं कि कहां से पानी जाएगा कहां पर। तो सबसे पहले आसपास क्या है, सॉइल, और क्या है, रूट हेयर्स, ठीक है। तो सॉइल से मैं एरोज बना रही हूं, ठीक है। सॉइल से जाएगा रूट हेयर्स में, रूट हेयर से जाएगा दूसरे सेल में, और सेल से जाएगा उसके ऊपर वाले सेल में, इसी तरह से जाएगा। और इधर भी जा सकता है, आया समझ में। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सॉइल से जाएगा रूट हेयर्स में, रूट हेयर्स से जाएगा रूट सेल्स में, यह है रूट, इसी तरह से जाएगा पानी, ठीक है। सॉइल से जाएगा रूट हेयर्स में, जो पतले पतले रूट्स में निकले हुए होते हैं, उसमें से जाएगा मेन रूट पे, मेन रूट सेल्स में पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद ऊपर पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके। Why is the structure of root hair considered suitable for absorbing water from the soil? 8 नंबर, रूट हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों अच्छा है, यहां पर है आंसर। ठीक है, पेज नंबर 5, 5th पेज नंबर पे रूट हेयर टॉपिक है, रूट हेयर, पेज 5 रूट हेयर टॉपिक है। वहां पर आपको आंसर मिलेगा, आपको खुद लिखना है, लिख लोगे, ठीक है। आशीष लिख लोगे बेटा, लिख लोगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर लिखना है, ज्यादा बड़ा मत लिखना, शॉर्ट आंसर पॉइंट्स में लिखना, ऐसे ऐसे करके पता चल जाएगा, पूरे पूरे स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं। आया समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9,
Briefly explain how transpiration helps in upward conduction of water in plants. ट्रांसपिरेशनल पुल है ना, पुल थियरी, वहां पर आपको आंसर मिलेगा। पेज नंबर 7 पे वहां पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पानी को ऊपर लेने में कैसे हेल्प करता है, ये आंसर लिखना है आपको। इज इट क्लियर टू यू? आयुष, आशीष, क्लियर बेटा? हम्म, हाँ सिद्धार्थ, नथिंग, कौन बोल रहा है? श्वेता? योर वॉइस, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस बेटा। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। राइट डाउन इफ यू वांट। 10 टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी और विंड इफेक्ट। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है? विल यू बी एबल टू राइट इट डाउन? ओके, सो राइट डाउन टेम्परेचर, कैसे लिखोगे? टेम्परेचर, लाइट, विंड, दो कॉलम्स बना दो। एक में लिख दो इंक्रीज, एक में लिख दो डिक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ट्रांसपिरेशन के साथ क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज, लाइट ज्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज, विंड ज्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज, लाइट भी कम होगा तो डिक्रीज, विंड भी कम होगा तो डिक्रीज। ऐसे लिख सकते हैं हम। Ma'am, because of network issues, my video is going off. Okay, no worries. You can hear me clearly? Yes. Okay. मैम, हाँ बेटा, मैम शॉर्ट आंसर्स कितना मैक्सिमम लाइन का लिखना है? लाइन नहीं, 1 or 2 स्टेटमेंट्स। ओके मैम। ओके, 11th एक्सपेरिमेंट है। क्या किया जा रहा है आप बता सकते हो? आगे दिया हुआ है सेम एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 8 है ना, उधर ही आपको आंसर मिलेंगे सारे। You have to find out and write the answers. फिर 12, ट्रू फॉल्स लिखना है।
Water absorption mainly occurs through root hair. True or false? True है तो ऐसा, false है तो ऐसे. ठीक है. फर्स्ट क्या आएगा? True. Water enters the root hair by osmosis. False श्वेता. आशीष false. सही में? देख लो एक बार रूट हेयर वाला. पेज नंबर 5 पे देखो क्या लिखा है. देखा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, मतलब क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा. ठीक है, तो ट्रू. सी. Water absorbed by roots reaches the leaves and is used in producing food for the entire plant. True or false? थर्ड सी वाले का क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. A semi-permeable membrane allows larger molecules to pass through but prevents smaller ones. D का क्या आएगा? False. Transpiration is the loss of water from the roots of the plant. False. ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? लीव्स के थ्रू होता है. ठीक है. ट्रांसपिरेशन कूल्स द प्लांट व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड. नहीं, इट्स ट्रू बेटा. आशीष ट्रू है. ठीक है, प्लांट को ठंडा रखता है ट्रांसपिरेशन होगा. क्या हुआ आशीष? होने से तो मतलब एनवायरमेंट. हाँ, एनवायरमेंट ठंडा रहता है, लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट भी तो सूख जाएगा ना. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है? 13. fill in the blanks. A, B, C, D, E. बताओ. फर्स्ट, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय अ डैश सिस्टम. अच्छा, आंसर शुड बी conducting. Very good. B, upward movement of sap that contains waters and minerals is called ascent. Transpiration is more when wind is blowing fast. Humid मतलब गीला बेटा. अगर विंड गीला गीला होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा? नहीं होगा.
Most water gets evaporated from the plant from its leaves. Transpiration is reduced if the air is humid. हो गया। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे? आंसर मैं बताती हूँ किस पेज पर है, ठीक है? Shall I erase this? First, draw a magnified view of a root hair. Describe how it helps in absorption of water from the soil. Page number 5. Diagram 1.5a. ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? और यहीं पर आंसर भी लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पे, ठीक है? सेकेंड, how does transpiration help the roots absorb water and minerals from the soil? ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है? आपको आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 8, इंपॉर्टेंस दिया है ना उसका, पॉइंट 2, ठीक है? Define 3 processes by which plants absorb water and minerals from the soil. 3 प्रोसेसेस कौन से हैं? एक है एसेंट ऑफ सैप, एक है रूट प्रेशर, एक है ट्रांसपिरेशन। यह है तीनों, ये तीनों है ना? ए बी सी। आ रहा है समझ में? इनका डेफिनेशन लिखना है आपको। तीनों का आ जाएगा। ट्रांसपिरेशन में ही कैपिलरी फोर्स और ट्रांसपिरेशनल पुल आता है ना बेटा। आपको क्या मेंशन करना है? हाउ, कौन सा क्वेश्चन बोला है हमने? थर्ड वाला। डिफाइन 3 प्रोसेसेस। कौन से 3 प्रोसेस है? एसेंट ऑफ सैप है, रूट प्रेशर है और ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन में 2 फोर्स है, ट्रांसपिरेशनल पुल एंड कैपिलरी फोर्स। आया समझ में? How the water absorbed by roots is important for the plants. रूट से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए? पेज नंबर 8,
3 पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3, दिया हुआ है, वो तीनों पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, फैक्टर्स, पेज नंबर 7। सुनो, आपको इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, आप पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ कॉपी नहीं कर लेना है, थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से फॉर्म करके स्टेटमेंट को छोटा कर सकते हो। ठीक है, नहीं आता है अगर आंसर लिखना तो कुछ भी मत लिख देना। ठीक है, आप ऐसा करना, अगर आपको नहीं आता है तो आपने जो लिखा हुआ है रफ एक लिखोगे, जहां पर आपको डाउट है कि आपको नहीं आ रहा है तो एक रफ नोटबुक में आंसर लिख देना, मुझे भेज देना कि मैम ये वाला आंसर हमने लिखा है, आप चेक कर लो। अगर राइट होगा तो मैं आपको बोल दूंगी कि आप कॉपी कर सकते हो, अगर गलत होगा या मिस्टेक्स होंगी तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में वो आंसर डिक्टेट करवा के लिखवा दूंगी। ठीक है, जहां आपको डाउट होता है वहां कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट मैम नहीं बन रहा है, तो मुझे बता दे। अंडरस्टूड? ठीक है, 6 नंबर, 2 ways in which transpiration helps the plant। फिर से 2 ways दिए हुए हैं पेज नंबर 8 पे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन है ना, शॉर्ट में लिखना है, इतना बड़ा नहीं कॉपी करना। ठीक है, नहीं कर पाओ तो रफ में लिखना और बाद में डिस्कस करके मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, रफ में लिख के मुझे भेज देना ग्रुप में कि मैम ये लिखा है, आप चेक कर लो, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, 7, experiment to show the plant loses water through leaves। एक्टिविटी 4, पेज नंबर 8। ठीक है, 8, name 3 minerals whose deficiency causes diseases in plant, give the symptoms। तो मिनरल्स आपको कहां पर दिए हुए हैं, पेज नंबर 9। कोई भी 3 लिख सकते हो, एनी 3, कोई भी 3 लिख लेना। ठीक है, 9, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस, ये तो आप लिख लोगे अच्छे से। ठीक है, आपने डिफरेंसेस करवाया भी? हाँ मैंने लिखवाया भी है और टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है पेज नंबर 3 पे, बट आप अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, इतना कर पाओगे आप लोग? नोट होमवर्क रहेगा आपका, नोटबुक में जो होमवर्क लिखने वाली नोटबुक है ना आपकी बायो की, नोटबुक में आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओनली आंसर्स। आया समझ में?
No questions has to be copied. Ayush, only answers. अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ देना, बाद में मैं आपको समझा के लिखवा दूंगी। बट बाकी सब लोग क्या करोगे, आपको जहां पर भी ऐसा लगता है कि आपसे सही से आंसर नहीं बन रहा है तो एक रफ आंसर लिखकर मुझे ग्रुप पर भेज देना, मैं उसको रीड कर लूंगी और अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको बता दूंगी कि आप लिख सकते हो, पेयर कर सकते हो। और अगर आपका आंसर गलत होगा या उसमें कुछ बाकी होगा तो मैं आपको क्लास में डिक्टेट कर, ठीक है, अंडरस्टूड। और जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो आते हैं वो लिख देना, लास्ट जब चैप्टर फिर पीछे खत्म होगा वहां पर नंबर डाल डाल के वापिस से लिख लेना, ठीक है। जैसे आपको सपोज लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें 1 2 3 आया, 4 नहीं आया, फिर 5 6 आता है, तो 4 के लिए जगह नहीं छोड़नी, 1 2 3 नंबर डाल के लिखना, 5 नंबर डाल के लिखना, 6 लिख लेना, 7 8 9 तक लिख लेना सब कुछ, और 3 नंबर फिर लास्ट में लिख लेना, चलेगा ना, ठीक है। तो जगह छोड़नी है मैडम, कितनी स्पेस छोड़नी है, कितने पेज छोड़ने हैं, ये सब नहीं, लास्ट में लिख लेना, अंडरस्टूड दिस? मैम यस, मैम हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है या फिर ट्रू एंड फॉल्स भी? सब कुछ ऑब्जेक्टिव भी, बट आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, मैम ट्रू एंड फॉल्स भी? सब कुछ फ्रॉम, आई विल से पेज नंबर 10 से एक्सरसाइज शुरू होती है, 10 से लेकर 13 तक जितना है सब कुछ नोटबुक में चाहिए मुझे, ठीक है। और हैंडराइटिंग शुड बी गुड, नो स्पेलिंग मिस्टेक शुड बी डन, मार्क वेल, और व्हाइटनर कोई यूज नहीं करेगा, और डायग्राम पेंसिल से बनाओगे, आया समझ में? आशीष क्लियर? यस मैम। ओके, आयुष समझ आ गया? यस मैम। गुड। तो ये काम करना है आप लोगों को, अच्छे से लिख लो, हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे अगर है तो, नहीं तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है क्लास कल ही हो, तो आपका अगर थोड़ा सा काम बाकी बच जाता है तो क्या करोगे, फिर मैं पनिश करूंगी? पनिश नहीं करूंगी, जितना होता है अच्छे से लिखना, गंदा काम नहीं करना है, क्लीन नीट वर्क होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा आप लिख पाओ, बाकी होमवर्क भी मिला होगा ना? नहीं मिला है, सिर्फ बायो में मिला है, स्कूल होमवर्क होगा, स्कूल का काम है या जो भी काम है आप लोगों का वो कंप्लीट करके ये वाला काम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, अंडरस्टूड दिस? कल शाम को है ना हमारा क्लास, आपके पास अभी टाइम है, 24 आवर्स, ठीक है। तो अच्छे से लिखना और सिर्फ आंसर्स लिखने, क्वेश्चंस कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आयुष समझ आ गया बेटा? यस मैम। हाँ, आसान। जहां पर भी डाउट हो, जैसा भी हो, अभी एकदम घबराना मत, आपका फर्स्ट क्लास है ना ये अभी? नो मैम, फर्स्ट क्लास भी सेकंड क्लास। अच्छा, वो लास्ट आप ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ था बस उसी में एक में आए थे ना? हाँ, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, जो कुछ छूट गया है वो हो जाएगा, बस एक बार सब कुछ ट्रैक पे सेट हो जाने दो फिर उसके बाद कर दो, ठीक है। आशीष लिख लोगे? यस मैम। हाँ, और लिखना ही है, आलस नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना कि मैडम नहीं लिखेंगे तो मैम सब कुछ चला लेगी, मैं यहाँ से बैठे बैठे भी पनिशमेंट दे सकती हूँ, ठीक है। हाँ, घर आ जाऊंगी अगर काम नहीं करोगे, घर आ जाओ, यस मैम। इसका मतलब काम नहीं करोगे? नहीं मैम, आप करिए। हाँ,
काम करना है, ठीक है, गुड। और काम नहीं होगा तो फिर उसके हिसाब से मैं एक्शन ले लूंगी, बट आपको अच्छे से आंसर्स देखो, ट्रू फॉल्स में टाइम नहीं लगेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी टाइम नहीं लगेगा, एमसीक्यू में भी टाइम नहीं लगेगा। टाइम कहाँ लगेगा? सिर्फ शॉर्ट आंसर्स लिखने में और लॉन्ग आंसर्स लिखने में, ठीक है ना, उसी में। और शॉर्ट आंसर में भी आपको खुद से बनाना नहीं है, बहुत सारी चीजें डायरेक्ट लिखनी है तो हो जाएगी। लॉन्ग आंसर में थोड़ा आपको खुद से सेंटेंसेस फॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा पैराग्राफ कॉपी नहीं करना है, थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना। अंडरस्टूड दिस? गुड। एनी डाउट्स? नो, श्वेता नो डाउट, सिद्धार्थ नो डाउट, आशीष नो डाउट्स, आयुष? अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वही है ना। स्कूल से कुछ सिलेबस मिला है आप लोगों को? कुछ बताया है स्कूल से? यस मैम। क्या बताया है? आवाज नहीं आई बेटा। क्या स्कूल से कुछ सिलेबस देते हैं, कुछ चैप्टर अगर हटाते हैं या ऐसा कुछ है तो बता देना, ठीक है। क्लियर? फाइन, सो यू कैन लीव एंड रेस्ट। हाँ बेटा। Good afternoon and thank you, ma'am. Yes, most welcome.